بلٹن کا آغاز کریں اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں گراں فروشوں اور منافع خوروں سے سختی سے نمٹنے کا فیصلہ سندھ سرکار کی جانب سے سپر سٹورز پر چھاپوں کا سلسلہ جاری ہے۔ مشہور سپر سٹور کو 1 لاکھ روپے کے جرمانے عائد۔ مزید کیا تفصیلات جانیں گے عاجز جمالی سے، بتائیے گا۔ جی اس وقت ہم شہر کے ایک بڑے سپر سٹور پر موجود ہیں۔ پہلے تو یہ جو منافع خوروں کے خلاف مہم چل رہی ہے سندھ حکومت کی، ہم نے چھوٹی چھوٹی مارکیٹیں دیکھی۔ ہمارا خیال تھا کہ شاید یہ پھلوں اور سبزیوں اور اس میں لیکن بڑے بڑے سپر سٹورز جو شہر کے ہیں ان میں بھی یہ صورتحال ہوتی ہے کہ کاؤنٹر تو بنے ہوئے ہیں، ڈی سی کاؤنٹر، لیکن ریٹ وہ اپنے من پسند لے رہے ہوتے ہیں۔ تو یہاں وزیر اعلیٰ سندھ کے معاون خصوصی عثمان ہنگورو کی قیادت میں بیورو آف سپلائز اور ضلعی انتظامیہ کی ٹیموں نے چھاپے مارے ہیں مختلف سپر سٹورز پر۔ کیا کہیں گے، اس سپر سٹور کو آپ نے جرمانہ کیا اور یہ لوگ بھی فراڈ کر رہے ہیں عوام کے ساتھ؟ یہ انہوں نے ڈی سی کاؤنٹر بھی لگایا ہوا ہے اور اس میں ایک تو کافی ریسٹرکشن لگا دی انہوں نے کہ کسٹمر اگر آئے گا تو ایک پیکٹ پرچیز کر سکتا ہے 1 کلو، اور دوسرا اس کے علاوہ دال ماش ہے وہ ڈی سی کاؤنٹر پہ رکھا ہوا 385 جبکہ نوٹیفائڈ پرائز ہے، اس کے اوپر انہوں نے ٹیگ لگایا ہوا ہے 429 روپے کا۔ تو یہ اوور چارجنگ ہو رہی ہے، تو لہٰذا اس کے اوپر ہم نے 1 لاکھ جرمانہ کیا اس کے اوپر، اور یہ وارننگ دی کہ سارے ریٹ صحیح کر لیں، نہیں تو آئندہ اس کے اوپر زیادہ جرمانہ کریں گے یا سیل کر دیں گے۔ عثمان صاحب، ہم تو چھابڑی والوں سے اور ٹھیلے والوں سے گزشتہ دنوں دیکھ رہے ہیں، لیکن یہ بڑے بڑے اسٹور جن کو روزانہ کروڑوں روپے کا کاروبار ہے، یہاں بھی مہنگے داموں پہ چیزیں فروخت ہو رہی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ بھائی، میں یہاں پر یہی سوچ کے آیا تھا کہ یہاں تو سسٹم پہ ہوگا، لیکن کافی چیزیں ایسی ہیں جو سسٹم سے ہٹ کر رہے ہیں، جو ڈی سی کے آرڈر جو ان کو فالو نہیں کیا جا رہا ہے، تو اس کی وجہ سے کچھ دال کے مسئلے ہیں۔ اور پھر ایک اور مسئلہ یہاں پر ہم نے دیکھا کہ اگر آپ لینا ہے تو 1 کلو لے سکتے ہو کوئی بھی چیز، تو اس کے لیے ہم نے پابند کر دیا کہ کتنی بھی چاہے وہ لینا چاہے وہ لے سکتا ہے، آپ اس کو روک نہیں سکتے ہو۔ بالکل۔ اور اتنی چیزیں ایسی ہیں جن پہ ہم فائن کیا ہے، ایک پہ تو فائن کیا ہے 1 لاکھ کا فائن کیا ہوا ہم نے۔ یہ بڑے اسٹورز بھی لوگوں کو لوٹ رہے ہیں، اور اشیاء جو کمشنر کراچی کی جو ریٹ لسٹ ہے اس کے مطابق یہاں پہ بھی چیزیں فروخت نہیں ہو رہی ہیں۔ جی، پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں کاروبار کا منفی اختتام، 100 انڈیکس 93 پوائنٹس کی کمی پر بند ہوا۔ آپ کو اپڈیٹ کریں، پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں کاروبار کا منفی اختتام، 100 انڈیکس 93 پوائنٹس کی کمی پر بند ہوا۔ مزید کیا تفصیلات جانیں گے ایاز رانا سے۔ جی ایاز، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، جیسے آج کاروبار کا آغاز جو ہے وہ دیکھا کہ ایک مثبت رجحان میں تھا اور مارکیٹ میں ایک اچھا تسلسل بنتا ہوا نظر آ رہا تھا، اور مارکیٹ میں ایک اچھی کاروباری سرگرمی دیکھنے میں نظر آ رہی تھی۔ سرمایہ کار صبح کے اوقات میں جو ہے وہ شیئر کی خریداری کو ترجیح دے رہے تھے، جبکہ ہم نے دیکھا کہ دن کا اختتام کے جب کاروبار کا اختتام ہو رہا تھا تو اس وقت مارکیٹ کے اوپر ایک پروفٹ ٹیکنگ کا پریشر نظر آیا، جس کے بعد مارکیٹ کے اندر 93 پوائنٹ کی کمی سے جو ہے وہ 100 انڈیکس بند ہوا اور 1,14,84 کی سطح پر اس وقت بند ہوا ہے۔ آج کاروبار کے حوالے سے اگر بات کریں تو 29 کروڑ 86 لاکھ شیئر کا کاروبار کیا گیا، جس کی مالیہ جات 30 ارب 36 کروڑ روپے بتائی گئی ہے۔ مارکیٹ میں جن سیکٹرز پہ آج کام ہوا اس کے اندر پہلے دیکھا جا رہا تھا کہ بینکنگ سیکٹر ہے، اس کے حوالے سے ایک اچھی خبر بھی آئی مودی کی جانب سے، اس کی بینکنگ پازیٹیو ہونے کے باوجود بھی جو ہے مارکیٹ کا علامت کامد نہیں ہوئی، اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ تمام سیکٹرز کے اندر ایک سیلنگ پریشر رہا، اور اس کے بعد مارکیٹ میں زیادہ تر بینکنگ اور فارماسیوٹیکل اور ساتھ ساتھ آئل اینڈ گیس سیکٹر کے اندر بھی سیلنگ دیکھی گئی، جس کی وجہ سے آج مارکیٹ کا اختتام معمولی 93 پوائنٹس کی کمی سے ہوا ہے۔ جی بہت شکریہ آپ کا۔ گورنر ہاؤس میں اتحاد رمضان افطار ڈنر کی تقریب۔ افطار ڈنر میں شہریوں کی بڑی تعداد موجود ہیں۔ اب سے کچھ دیر قبل شہریوں نے افطار کیا ہے، جس میں سموسے، پکوڑے، بریانی، کھجور، شربت، جوس اور فروٹ چاٹ سے مہمان نوازی کی گئی۔ ہمارے نمائندہ خورشید رحمانی اب سے کچھ دیر قبل ہمیں آگاہ کر رہے تھے۔ موجود ہیں گورنر ہاؤس سندھ میں، اور گورنر سندھ محمد کامران خان ٹیسوری کی جانب سے اتحاد رمضان کی جو افطاری اور ڈنر کی جو ٹرانسمیشن ہے وہ روزانہ کی بنیاد پر جاری ہے، اور آج بھی اب سے کچھ دیر قبل یہاں پر جو گورنر ہاؤس میں آئے ہوئے شہریوں نے پرتکلف جو ہے وہ افطار کیا ہے، اور اس افطار میں بہت ساری چیزیں جو ہے وہ رکھی جاتی ہیں شہریوں کے لیے، جس میں پکوڑے، سموسے، بریانی، فروٹ چاٹ، چنا چاٹ
اور اس کے علاوہ دیگر بھی لوازمات یہاں پر ہوتے ہیں جس سے گورنر سندھ ان کی مہمان نوازی کر رہے ہیں. آپ میرے رقم میں دیکھ سکتے ہیں کہ ایک بہت بڑی تعداد یہاں پر اس وقت شہریوں کی موجود ہے جنہوں نے اب سے کچھ دیر قبل افطار کیا ہے اور اس وقت معروف نعت خواں ہدیہ گل حیا کی عقیدت پیش کر رہے ہیں. اس کے علاوہ بیرون ممالک سے آئے ہوئے پورا حضرات بھی جو ہے وہ کلام پاک کی جو تلاوت کر کے لوگوں کے جو لہو ہے اس کو گرمایا ہے. روزانہ کی بنیاد پر یہ ٹرانسمیشن کا سلسلہ جاری ہے. میرے ساتھ اس وقت 2 طالب علم موجود ہیں, ان سے پوچھیں گے آج کی افطاری کیسی رہی, ان کی کیسی رہی آج کی افطاری, کیا بتائیں گے؟ آج کی افطاری ماشاءاللہ بہت اچھی تھی کہ ڈیلی بیسس کی بنیاد پر گورنر صاحب ماشاءاللہ پہ کراچی کے عوام کے لیے بہت اچھا اہتمام کرتے ہیں, کیونکہ اکثر لوگ فیملیز میں دیکھا ہے کہ بہت زیادہ ڈس اپوائنٹ ہو چکی ہیں ملکی حالات کو لے کے اور بہت ساری چیزوں کو لے کے, تو انہوں نے ایک اچھا ٹرینڈ نکالا ہوا ہے کہ لوگوں کو خوشحال کیا ہوا ہے, یہاں پر آتے ہیں ماشاءاللہ بہت اچھے سے کھانے بھی ہیں, افطاری کا پروگرام کیا ہوا ہے, تو ماشاءاللہ ایک اچھی گیدرنگ ہو جاتی ہے فیملی کے لحاظ سے. آپ کیا کہیں گے آج کیا امید لے کر آئے ہیں؟ پلاٹ میں قرآن دازی کا نام نکل جائے گا آپ کا یا عمرے کا ٹکٹ نکلا, کیا سوچ ہے ذہن میں آج؟ انشاءاللہ بالکل یہی امید تھی کہ یہاں پہ کوئی ٹکٹ نکل جائے گا, بٹ اب دیکھتے ہیں اللہ خیر کرے کیا ہوتا ہے. لیکن ویسے یہاں کی افطاری بہت اچھی تھی, ہمیں کھانے میں بھی اچھا دیا گیا, ہمارے ساتھ ریٹ بھی اچھا کیا گیا, اور باقی میں بہت زیادہ شکریہ ادا کرتا ہوں گورنر صاحب کا. تھینک یو. 2 طالب علم جو ہم سے گفتگو کر رہے تھے, ان کا کہنا تھا کہ آج یہ جو افطاری تھی وہ بہت عمدہ تھی اور یہ افطاری کا پر جو ہے وہ گورنر سندھ کا شکریہ بھی ادا کر رہے ہیں. جبکہ دوسرے طالب علم نے کہا کہ آج ان کی امید ہے کہ ان کا عمرے کا ٹکٹ نکلے یا پلاٹ نکلے. اس کے علاوہ اس وقت بھی وہ ہدیہ گل حیا کی عقیدت جو ہے وہ معروف سونا خواں پیش کر رہے ہیں, جبکہ یہاں پر بہت بڑی تعداد خواتین کی, بزرگ بچوں کی موجود ہے, اور جو اس طرف جو ہے وہ طالبہ اور طالبات کی بڑی تعداد ہے جو اسکولوں کے بچے یہاں پر آئے ہوئے ہیں. اور دوسرا آج سندھ اسمبلی کی جو پارلیمنٹری رپورٹر ایسوسیشن ہے اس کے وفد کو بھی آج گورنر سندھ نے خاص افطار پر مدعو کیا ہے, وہ بھی یہاں موجود ہیں. اس کے علاوہ روزانہ کی بنیاد پر شہریوں کو ایک پلاٹ, ایک عمرے کا ٹکٹ, اس کے علاوہ عیدی بھی دی جاتی ہے. خصوصاً بچوں کو بھی روزانہ کی بنیاد پر عیدی گفٹ جو ہے وہ کیش انعام گورنر سندھ کامران خان ٹیسوری کی جانب سے دیا جاتا ہے. اور یہ اتحاد رمضان کی جو ٹرانسمیشن ہے یہ پورے ماہ رمضان میں جاری رہے گی. جی. گورنر ہاؤس اور اعتراف میں چراغاں. کامران خان ٹیسوری کا آئندہ سال سندھ بھر میں سرکاری عمارتوں کو چراغاں کرنے کا اعلان. وزیر اعظم سے بھی ملک بھر میں چراغاں کرنے کی درخواست کا وعدہ کیا. کہا رحمتوں کے مہینے میں اندھیروں کی کسی صورت گنجائش نہیں. مزید ان کا کیا کہنا ہے, آئیے آپ کو سنواتے ہیں. گورنر ہاؤس کے اندر افطار ڈنر کا اہتمام, لیکن اس بار ایک نئی چیز جس کا میں ذکر کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ ہم نے افطار اور ڈنر میں لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہمیں توفیق دی گئی اس کی میزبانی تو کی ہی, لیکن اس بار پورے گورنر ہاؤس کو اور اس کے اطراف جو ایوان صدر روڈ ہے اسے بہت ہی خوبصورت انداز سے برقی کوموں سے سجایا گیا ہے, پوری لائٹنگ کی گئی ہے. انشاءاللہ تعالیٰ اگلے رمضان میں ایک نوٹیفیکیشن بھی جاری کروں گا, کم از کم ہمارے سندھ میں اور شہر کراچی میں جتنی سرکاری عمارتیں ہیں انہیں بھی سجایا جائے, رمضان کی آمد کا استقبال کیا جائے, روڈوں پہ روشنیاں کی جائیں. اور میں وزیر اعظم پاکستان سے بھی یہ ریکویسٹ کروں گا, ان کو ایک خط بھیجوں گا کہ وہ آفیشلی یہ نوٹیفیکیشن جاری کریں کہ رمضان المبارک کے پورے مہینے پورے پاکستان میں روشنیوں کا ہو. 12 مارچ سندھ حکومت کی 1 سالہ کارکردگی پر مراد علی شاہ کی بریفنگ. واضح کیا کہ 1 سال کے دوران مختلف منصوبوں پر کام کیا, جو کچھ کر سکتے تھے وہ کیا. ڈیجیٹلائزیشن پر فوکس کیا, سندھی ہاری کارڈ کا اجرا کیا, پانی ذخیرہ کرنے کے لیے اقدامات بھی کیے گئے, پیپلز انفارمیشن ٹیکنالوجی پروگرام شروع کیا. قائد اعظم اور ذوالفقار بھٹو کے ویژن کو آگے بڑھانے کا عزم دہرایا. مزید تفصیلات جانیں گے عاجز جمالی کی اس رپورٹ میں. حکومت نے 1 سال میں کیا کچھ کیا, وزیر اعلیٰ نے کارکردگی سب کے سامنے رکھ دی. واضح کیا رواں سال شاہراہ بھٹو کو موٹر وے سے منسلک کیا جائے گا. رواں ماہ قائد آباد تک سڑک مکمل کی جائے گی. پیپلز انفارمیشن ٹیکنالوجی پروگرام شروع کیا گیا ہے. قائد اعظم اور ذوالفقار علی بھٹو کے ویژن کو آگے بڑھانے کا عزم دہرایا. مراد علی شاہ نے کہا کہ 51 ارب روپے کے منصوبوں میں وفاقی حکومت ہمارے ساتھ ہے. اگست تک ہب کینال مکمل, نیا جام صادق پل 1 سال میں مکمل ہوگا. کراچی میں 3 ارب 53 کروڑ کے روڈ مکمل ہوئے. لینتھ تقریباً 2500 کلومیٹر ہے. ٹوٹل کاسٹ تقریباً 54 ارب روپے 53.5 بلین. اس کے علاوہ جو ہمارے فلڈ افیکٹڈ روڈز تھے
120 फ्लड अफेक्टेड रोड्स जिनकी 704 किलोमीटर टोटल लेंथ थी, और ये बड़े बड़े रोड्स हैं, आगे कुछ आपको दिखाऊंगा भी मैं। इसमें तकरीबन हम 41.8 बिलियन, ऑलमोस्ट 42 बिलियन हम कर चुके हैं। ये लिखना नहीं चाहिए था, खैर लिख दिया तो बताता हूँ। इंशाल्लाह 527 किलोमीटर रोड और बाय द एंड ऑफ दिस फाइनेंशियल ईयर हम कंप्लीट कर लेंगे। सैयद मुराद अली शाह ने कहा कि सरकारी महकमों को डिजिटलाइज्ड किया गया है और सोलराइजेशन का मंसूबा जारी है। आइंदा साल तक 5 लाख अफराद में सोलर्स तकसीम किए जाएंगे। हम तकरीबन 10 अरब रुपए 1,68,506 फार्मर्स को थ्रू दिस डिजिटल मींस दे चुके हैं। वज़ीर आला सिंध ने जिना अस्पताल, SIUT, NICVD और पीर अब्दुल कादिर शाह जिलानी इंस्टीट्यूट ऑफ गम्बट की तारीफ की। बोले इन अस्पतालों में बैनुल अक़वामी सतह का इलाज मुफ्त किया जा रहा है। कैमरामैन राहील अहमद के साथ आजिज़ जमाली, कराची। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी के ताउन से नुमाइश चुरंगी पर सैलानी बचत बाजार कायम कर दिया गया, जहां मार्केट के नर्ख से कम कीमत पर खरीदारी की जा सकती है। बचत बाजार के इंचार्ज मोहम्मद हमजा के मुताबिक चावल, दालें, आटा, चीनी, बेसन और दीगर अशिया कम कीमत पर दस्तयाब हैं। खुर्शीद रहमानी की रिपोर्ट देखें। गवर्नर सिंध और सैलानी वेलफेयर का अहसन इकदाम। महंगाई की सताए आवाम के लिए नुमाइश चौरंगी पर सैलानी बचत बाजार कायम, राशन पर जबरदस्त रियायत। सैलानी बचत बाजार के इंचार्ज मोहम्मद हमजा कहते हैं कि मार्केट से कम कीमत पर अशिया दस्तयाब हैं। यहाँ चावल, दालें, आटा, चीनी और दीगर अशिया सस्ती हैं। आटे की हमारे 2 क्वालिटी, चक्की का और मिक्स आटा। ये मिक्स आटा है 830 रुपये का। जी हम 830 रुपये देते हैं, बाहर 950 का 900 रुपये का मिलता है। तो हम कंपनी जो रेट देती है ना, उसी रेट में हम काम करते हैं, नो लॉस नो प्रॉफिट में। इसके अलावा ये दालें वगैरह सब चीज़ें हमारे पास कम रेट में मिलती हैं। चावल सेक्शन के इंचार्ज फाइक अहमद ने बताया कि बचत बाजार में चावल की 4 अक़साम मौजूद हैं और तमाम रियायत पर दी जा रही हैं। 4 किस्म के हमारे पास चावल, जैसे एक सेला है, बासमती है, साबुत, टोटा, पोनिया है। ये 4 किस्म के हमारे पास चावल हैं। छोटे पैकिंग भी मिल जाती है, जैसे कोई आता है। शहरियों ने बचत बाजार में सस्ती अशिया की फरोख्त को खुशाइन करार दिया। अच्छी रियायत मिली, अच्छा है, पहले से बेहतर है माशाल्लाह, और सस्ताई है। काफ़ी बचत हो जाती है, कम है काफ़ी, और साफ़ सुथरा है, कोई इसमें कीड़े वड़े नहीं है और कोई वो नहीं है, धक्कम फैल नहीं है, आराम से है। सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट के बचत बाजार में आटा, घी, कुकिंग ऑयल, दालें, चावल, खजूर और दीगर अशिया खोरोनोश रियायती कीमतों पर दस्तयाब हैं। कैमरामैन अब्दुल कयूम शेख के हमरा मोहम्मद खुर्शीद रहमानी, सिटी 21। रमज़ानुल मुबारक के दूसरे अशरे में भी मुनाफाखोरी और ज़ख़ीरा अंदोज़ी का बाजार गर्म है। चीनी, बेसन, आटा, गोश्त, सब्जियां और दीगर अशिया ज़रूरियात भी महंगी कर दी गई, जिसके बायस गरीब और मुतवस्सत तबका शदीद मुश्किलात का शिकार है। मज़ीद क्या तफसीलात हैं, जानेंगे काविश मेहमन की इस रिपोर्ट में। माह सयाम में महंगाई उरूज पर, गिरा फरोश आवाम को लूटने में मसरूफ। चीनी, बेसन, अंडे, आटा, गोश्त, सब्जियां और दीगर अशियाए ज़रूरिया महंगी कर दी गयी। चीनी 180 और बेसन 340 रुपए किलो पर जा पहुंचा। फी दर्जन अंडे 50 रुपए इजाफे से 290 रुपए में फरोख्त होने लगे। मुर्गी का गोश्त सरकारी कीमत से 100 रुपए महंगा 750 रुपए किलो दस्तयाब है, जबकि चक्की मालकान की भी मनमानियां उरूज पर हैं। आटा सरकारी कीमत से 20 रुपए महंगा 120 रुपए किलो में फरोख्त होने लगा। शहरियों का कहना है कि हुकूमत माह सयाम में आवाम को रिलीफ की फराहमी के लिए इकदाम करे। महंगाई के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है सर, वही जिन इसके ऊपर काबिज किया हुआ है, महंगाई का जिन। महंगाई बहुत है यार, महंगाई का तुम बात ही नहीं कर रहे। खुदा की कसम जो कमाता है वही लग जाता है। कमिश्नर तो कभी जिंदगी में नजर आता ही नहीं, बस ये कि कोई पूछने वाला नहीं है। बस तरबूज पहले रमजान से एक दिन पहले 80 रुपया किलो, अभी जो है ना वो 200 रुपया किलो हो गए। तो ये क्या है, चीनी 110 115 वाला 180 रुपए। सब लोग बेईमान है, सब लोग, कोई सही नहीं है। पत्थर उठाओ सब बेईमान है, छोटे से लेके बड़े तक सब बेईमान है। रमजानुल मुबारक से कबल ही मुनाफाखोर और ताजिर अशिया ज़रूरिया को ज़ख़ीरा कर लेते हैं, जिसके बाइस बाजार में किल्लत पैदा हो जाती है। तलब बढ़ती है तो कीमतों में बेपनाह इजाफा कर दिया जाता है। चीनी, आटा, घी और दीगर बुनियादी अशिया की किल्लत पैदा करके उनकी कीमतों को गैर मामूली तौर पर बढ़ाया जाता है। कैमरामैन शाहजेब रजा के साथ काविश मेमन, सिटी 21।
रमज़ान का पहला अशरा इख्तिताम पसीर, लेकिन गैस मसाइल बदस्तूर बरकरार। शहर के मुख्तलिफ इलाकों से गैस मसाइल की शिकायत सामने आने लगी। कोरंगी, सोल्जर बाजार, नॉर्थ कराची, PIB कॉलोनी, मार्टिन क्वार्टर और मूसा कॉलोनी समेत मुख्तलिफ इलाके गैस से मुतासिर हैं। वसीम इफ्तिखार की रिपोर्ट देखें। कराची में गैस मसाइल मजीद संगीन होने लगे। रमजानुल मुबारक में भी आवाम को रिलीफ ना मिल सका। अहलियाने कराची रोजाना की बुनियाद पर गैस मसाइल से दो चार हैं। कोरंगी, सोल्जर बाजार, नॉर्थ कराची, PIB कॉलोनी समेत दीगर इलाके गैस से मुतासिर हैं। सहरो इफ्तार में खवातीन को खाना पकाने में दुश्वारी का सामना है। शहरियों का कहना है कि होटलों से सहरी इफ्तारी लाने पर मजबूर हैं। सहरो इफ्तार के वक्त या तो गैस गायब होती है या प्रेशर कम हो जाता है। तो उसमें आती है गैस तो प्रेशर नहीं होता, सुबह के टाइम में आती है तो है, तो प्रेशर कभी हल्का कभी तेज़, तो लोग परेशान है, कभी बिल्कुल नहीं आती है, आते आते चली जाती है, आ रही तो तेज़ आ जाती है, तब नहीं आती तो बिल्कुल नहीं आती है, बिल्कुल भी आती है, और तो ऐसा होता है। तो फिर कभी पराठे वराठे रोटी जो लेनी बाहर से ले आती, निज़ाम चलता है। होना बस चाहिए, गैस का मसला है, इसका बाहर चलाए अफ्तारी और खरीद लिए बाहर से। तर्जुमान सुई सदरन गैस के मुताबिक सार्फिन की सहूलत के लिए इकदामात किए गए हैं ताकि रमजानुल मुबारक में सार्फिन को गैस मसाइल दरपेश ना हो। कैमरामैन हसनैन के साथ वसीम इफ्तिखार, सिटी 21। सुई गैस की लाइनों को बिछाने के लिए न्यू कराची टाउन के 36 में से 32 सेक्टर खोदे गए, जिसका काम ताखीर का शिकार होने से लाखों अफराद सख्त परेशानी से दो चार हैं। रिजवान अहमद की रिपोर्ट देखें। न्यू कराची में तरक्याती काम आवाम के लिए जहमत बन गए। माह रमजान में गंदगी और ताफुन ने आवाम का जीना मुहाल कर दिया। न्यू कराची टाउन की UC 13 सेक्टर 8 में भी सुई गैस की लाइनें बिछाने के दौरान पानी और सेवरेज समेत जेर जमीन मौजूद लाइनें टूट गयीं, जिससे 1000 से जायद घरानों की जिंदगी अजीरन बनी हुई है। जिस दिन से इन्होंने खुदाई करी है, लाइनें मैंने डाली हुई हैं, तो उसके बाद वो तो चले गए हैं, भूल गए हैं कि वापस भी आना है। ये सब इतना खाना ख़राब पड़ा है। यहाँ कोई भी गली आप सेक्टर 8 की देख लें, हर गली खुदी पड़ी है, पानी पानी हो रहा है। वो रोज़ेदार तो आगे जाके अपनी इन दुकानों से कोई परचेजिंग ही नहीं कर पा रहे, न फ्रूट, न कोई चीज़, न ग्रॉसरी, कुछ भी खरीद नहीं पा रहे हैं पानी की वजह से। इलाका मकीन कहते हैं बेशतर लाइनों की मरम्मत नहीं की गई, जो बनाई गई वो नाकिस काम के बाइस दोबारा फट गईं। एक जानिब मीठा पानी जाया हो रहा है तो दूसरी तरफ रमजानुल मुबारक में गंदगी और गलाजत से आवाम की इबादत भी मुतासिर हो रही हैं। उसके बाद ये हुआ कि पानी जब आता है तो ये रोड भर जाता है, कुछ गुजरने की जगह नहीं होती, यानी जो जाने वाले आदमी है वो सब मुश्किल में हो जाते हैं, नमाज पढ़ने के लिए मुश्किल हो जाता है। बहुत तकलीफ़ में हैं जो बुजुर्ग जाते हैं फजर में नमाज के लिए और सारे दिन जाते हैं, वो बड़े मसले पड़े हुए हैं, बिल्कुल उनके लिए जाना आना माहौल हो रहा है नमाजियों के लिए, और कपड़े ख़राब होते हैं, अलग गंदगी है, गलाजत है। सुई सदरन मुकर्ररा वक्त पर न्यू कराची टाउन में काम मुकम्मल ना कर सका, जिसके बाइस सड़कों और गलियों की मरम्मत का काम ताखीर का शिकार होगा और आवाम को मजीद कई माह परेशानियों को झेलना पड़ेगा। कैमरामैन सज्जाद रईस के साथ रिजवान अहमद, सिटी 21। सिंध हुकूमत का कैदियों के बच्चों को मुफ्त मयारी तालीम और स्कॉलरशिप देने का ऐलान। वज़ीर तालीम सिंध सैयद सरदार अली शाह की सेंट्रल जेल कराची आमद। वज़ीर तालीम ने पैगाम पाकिस्तान के तहत सज़ा याफ्ता कैदियों के बच्चों को तालीम के इक़दाम उठाने की तकरीब में शिरकत की। सूबाई वज़ीर ने कहा कि हम कैदियों के बच्चों को मुजरिम नहीं आइंस्टाइन बनाना चाहते हैं। उनका मज़ीद क्या कहना है, आइए आपको सुनवाते हैं। पैगाम पाकिस्तान के दोस्तों ने हमें मशवरा दिया, प्रोफेसर मेराज वालों ने, कि इस तरह का इनिशिएट किया जाए। हमने उसी वक्त ही मीटिंग, जॉइंट मीटिंग कॉल की जिसमें हाजी अली हसन ज़रदारी साहब और हम साथ बैठे और हमने ये इनिशिएट किया। आज आप देखते हैं कि पैगाम पाकिस्तान, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन और मिनिस्ट्री ऑफ प्रेसिडेंस तीनों ने मिलकर ये पाकिस्तान में एक नया बुनियाद रखा है। और मैं समझता हूँ ये फ़कत एक रिवायत का बुनियाद नहीं है, एक नए मुआशरे का बुनियाद है। हम जो जिसको कैदी समझते हैं उनको हम नफ़रत की निगाह से देख के उनको हम जेल की सलाखों के पीछे भेज देते हैं और नहीं समझते कि उसके पीछे उसकी बीवी है, उसके बच्चे हैं, उसकी और फैमिली है पूरी की पूरी। वो कसूरवार नहीं है, उसको रियासत को ऑन करना है। और ये मैं समझता हूँ वो इनिशिएट है जो उसको मज़ीद कैदी बनाने से और उनके बच्चों को कैदी बनाने से बचाने की रिवायत है। इसको हमने ये शुरुआत की यहाँ पे। और आज खुशी इस बात की है कि आज स्कॉलरशिप्स के लेटर भी उन पर जारी हो चुके हैं और बाकी जो अभी डेटा जैसे कलेक्ट हो रही है, जहाँ जहाँ भी बच्चे उनके होंगे, फ्राम ज़ीरो टिल द यूनिवर्सिटी ग्रेजुएशन तक, हम उनका पूरा स्कॉलरशिप का जो है वो इंतजाम कर रहे हैं। खून सफ़ेद हो गया, भतीजों ने चचा और कज़न पर फायरिंग कर दी। बेटा दाऊद अली खान जाँ बहक और वालिद रहमतुद्दीन जख्मी हो गया।
रहमत दीन ने पुलिस कार्रवाई पर अदम इत्मीनान का इजहार कर दिया। कहते हैं मुल्ज़मान इलाके में घूमते और धमकियां देते हैं। मज़ीद क्या तफसीलात बताएंगे जावेद कायम खानी, बताइएगा। बिल्कुल जी, इसी तरह का वाक़या पेश आया है न्यू कराची के अंदर गबोल टाउन थाने के हदूद के अंदर, और आपस में रिलेटिव रिश्तेदारी जो है वो एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। फायरिंग का वाक़या पेश आया। छोटी सी एक जो है वो कि बात के ऊपर अदम बर्दाश्त हुई, उसके बाद वो इतना बड़ा कि फायरिंग का वाक़या पेश है जिसमें बेटा जहाँ बाग और वालिद जो है वो रहमत दीन ज़ख्मी। हमारे साथ रहमत दीन मौजूद हैं। क्या करते थे आप लोग, कहाँ थे और वाक़या आखिर क्यों पेश आया था? अभी भी आते हैं इधर, हमको घर के पास मोटरसाइकिलों पे आते हैं, निकाह बांधा हुआ है, बाकायदा धमकियाँ देते हैं और चले जाते हैं। तो इतना जुल्म, बेइंतहा जुल्म उस लोगों ने किया हमारा साथ, हमको इंसाफ नहीं मिलता है। हम जो है ना ये अपील करते हैं अपना बड़ों से जो हमको इंसाफ दिया जाए। मुराद अली शाह से अपील की गई है वज़ीर आला सिंध के साथ साथ IG सिंध और एडिशनल IG कराची के आखिर इन दंदनाते कातिलों को कैफरे किरदार तक कौन पहुंचाएगा, जिनसे ये अपने आप को गैर महफूज समझते हैं और घर में जो है महसूर होकर रह गए हैं। जी बुलेटिन में आगे बढ़े और अब आपको बताएं, शहर से तजावुज़ात के खात्मे का अज़्म। ज़िला ईस्ट में एंटी इंक्रोचमेंट टीम का पुलिस और इंतज़ामिया के हमरा ग्रैंड ऑपरेशन सुपर हाईवे के इतराफ 20 एकड़ सरकारी अराजी को कब्ज़ा माफिया से वागुजार कराने में कामयाब हो गया। कब्ज़ा माफिया के खिलाफ इंसदादे तजावुज़ात टीम ने डंडा उठा लिया। सुपर हाईवे के इतराफ सरकारी अराजी पर कब्ज़ा माफिया के खिलाफ ज़िला इंतज़ामिया और पुलिस ने ग्रैंड ऑपरेशन का आगाज़ कर दिया। सुपर हाईवे पर कायम गुलशन साहिल में 20 एकड़ सरकारी अराजी वागुजार करवा ली गई। SHO एंटी इंक्रोचमेंट ईस्ट अहमद का कहना है कि इससे मुल्हिका अराजी पर भी ऑपरेशन किया जाएगा। 20 एकड़ के करीब सरकारी अराजी हमने वागुजार कराई है। आप लोग हम मेरे पीछे देख सकते हैं, ऑपरेशन स्मूथली जारी है। ये कुछ रोड्स हैं, पाथ्स हैं, फुटपाथ्स हैं, रोड्स हैं और एम्यूनिटी प्लॉट्स हैं जिन पे कब्जा किया गया था लैंड ग्रैबर्स की जानिब से, उनको वागुजार कराया गया और ऑपरेशन जो है कल भी जारी रहेगा और कंटिन्यूशन में रहेगा इंशाल्लाह। महकमा स्कूल तालीम में 2 17 ग्रेड के सेक्शन अफसरान के तकर्रुर तबादले। महकमा स्कूल तालीम के सेक्शन अफसर जनरल इकबाल जुनेजो ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। आपको अपडेट करें, महकमा स्कूल तालीम में 2 17 ग्रेड के सेक्शन अफसरान के तकर्रुर तबादले। महकमा स्कूल तालीम के सेक्शन अफसर जनरल इकबाल जुनेजो ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। आरिफ अली जरदारी सेक्शन अफसर प्राइमरी 2 स्कूल तालीम तैनात कर दिए गए। सेक्शन अफसर प्राइमरी 2 स्कूल तालीम सदरुद्दीन सोमरो का तबादला कर दिया गया। सदरुद्दीन सोमरो सेक्शन अफसर प्राइमरी 1 स्कूल तालीम तैनात कर दिया गया। प्राइवेट सेक्रेटरी स्पेशल सेक्रेटरी स्कूल तालीम का इजाफी चार्ज आरिफ अली जरदारी के स्पुर्द। महकमा स्कूल तालीम के सेक्शन अफसर जनरल इकबाल जुनेजो ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। आपको अपडेट करें, महकमा स्कूल तालीम में 2 17 ग्रेड के सेक्शन अफसरान के तकर्रुर तबादले कर दिए। महकमा स्कूल तालीम के सेक्शन अफसर जनरल इकबाल जुनेजो ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। मज़ीद क्या तफसीलात है जानेंगे आज़ाद नोडियो से। जी आज़ाद, बताइएगा। हुकूमत के महकमा स्कूल तालीम में 17 ग्रेड के 2 सेक्शन अफसरान के तकर्रुर तबादले कर दिए हैं। इस हवाले से महकमा स्कूल तालीम के सेक्शन अफसर जनरल इकबाल जुनेजो के बाद नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक आरिफ अली जरदारी को जो है सेक्शन अफसर प्राइमरी स्कूल 2 तैनात किया गया है, जबकि प्राइवेट सेक्रेटरी जो है स्पेशल सेक्रेटरी स्कूल तालीम का जो इजाफी चार्ज भी आरिफ अली जरदारी के सुपुर्द कर दिया गया है, जबकि सेक्शन अफसर 2 प्राइमरी स्कूल तालीम सदरुद्दीन का तबादला करके सेक्शन अफसर प्राइमरी 1 जो है स्कूल तालीम तैनात कर दिया है, क्योंकि सेक्शन अफसर प्राइमरी 1 के तबादले की वजह ओहदा खारिज है, जिसके बाद आज जो सदरुद्दीन सोमरो को सेक्शन अफसर 1 और आरिफ अली जरदारी को सेक्शन अफसर 2 प्राइमरी स्कूल तालीम तैनात कर दिया गया है। जी आज़ाद नोडियो, बहुत शुक्रिया आपका। साल का पहला मुकम्मल चांद ग्रहण 14 मार्च को होगा। सुपारको के मुताबिक इस मौका पर आसमान सुर्ख रंग की रोशनी से मुनव्वर हो जाएगा। ये लगभग 3 साल बाद पहला मुकम्मल चांद ग्रहण होगा। ऐसा आखिरी बार 2022 में हुआ था। आपको अपडेट करें, साल का पहला मुकम्मल चांद ग्रहण 14 मार्च को होगा। सुपारको के मुताबिक इस मौका पर आसमान सुर्ख रंग की रोशनी से मुनव्वर हो जाएगा।
ये लगभग 3 साल बाद पहला मुकम्मल चांद ग्रहण होगा। ऐसा आखिरी बार 2022 में हुआ था। साल का पहला मुकम्मल चांद ग्रहण 14 मार्च को होगा। सुपारकों के मुताबिक इस मौके पर आसमान सुर्ख रंग की रोशनी से मुनव्वर हो जाएगा। ये लगभग 3 साल बाद पहला मुकम्मल चांद ग्रहण होगा। ऐसा आखिरी बार 2022 में हुआ था। कराची में मौसम तब्दील होते ही बीमारियां भी फैलने लगी। खाने पीने में बेएहतियाती से नज़ला, ज़ुकाम, खांसी और बुखार के अमराज में इजाफा हो गया। इंचार्ज एमरजेंसी के मुताबिक सिर्फ सिविल अस्पताल की एमरजेंसी में 50% केसेस में इजाफा हो गया। इस हवाले से एमरजेंसी के इंचार्ज डॉक्टर इमरान सरवर क्या कहते हैं, आइए आपको सुनवाते हैं। जैसे जैसे सर्दियाँ थी और फिर उसके बाद चेंज हो रहा है, तो हमारे पास नज़ला, ज़ुकाम के, एस्थमा के पेशेंट, नमोनिया के पेशेंट ज़्यादा आ रहे थे। हम ये अगर कहें कि 100-150 पेशेंट हमारे पास डेली 24 घंटे में आ रहे थे, तो अभी जो कुछ दिनों से जैसे मौसम चेंज हो रहा है, गर्मी और सर्दी और मिक्स हो रहा है, सुबह को दिन को टाइम गर्मी है, रात के टाइम पे थोड़ी हल्की सर्दी है, खुश्की सी है, और फिर रमज़ान भी आ गया है माशाल्लाह, रोज़े भी लोग रख रहे हैं माशाल्लाह। अच्छा, उसमें थोड़ी बेहतियाती भी हो रही है, ठंडे मशरूबात का इस्तेमाल हो रहा है, हालांकि इतना सीज़न चेंज नहीं हुआ। समोसे पकौड़े तो जारी है, सब लोग खाते हैं, हम भी खाते हैं, सब खा रहे हैं,